Hello, my dear students. Today we are going to talk about the Hertz observation. So, see here, in the beginning of the 18th century, it was considered that light is electromagnetic wave, and एक्चुअल में वहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ने देखी नहीं थी, किसी ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, बट देर वॉज अ इक्वेशन प्रेजेंटेड बाय मैक्सवेल और द साइंटिस्ट in year 1864. So a scientist named as Heinrich Hertz, he was came forward in around 1887. He was working with the Maxwell's equation. He was trying to create and generate the electromagnetic wave. During that process, he was working with this apparatus. Okay, so he found that कि जो apparatus वो यूज़ कर रहे थे, उस apparatus के spark gap में नोटिस किया हर्ट्स ने कि उसका जो स्पार्क गैप है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था. क्या हुआ वहाँ पे कि द apparatus आफ्टरवर्ड नेम एज एंटेना, तो वो जो एंटेना थे उसके स्पार्क गैप में he found that the spark gap conducts electricity more easily. So see, electromagnetic waves थी, उसकी इक्वेशन है और उसकी इक्वेशन पे काम कर रहे थे हेनरिच हर्ट्स. ओके, he was trying to create and generate it. So during that process, he found that the spark gap conducts electricity more easily. सो ये जो स्पार्क गैप का फिनोमेना था, इसका नाम पड़ा हर्ट्स इफेक्ट. क्या बोला गया इसे? क्योंकि इसे हर्ट्स ने पहली बार फाइंड किया, पहली बार उन्होंने दरियाफ्त किया, तो उनके नाम के साथ ये इफेक्ट को दिया गया हर्ट्स इफेक्ट. इन द डिस्कवरी ऑफ दिस इफेक्ट, हर्ट्स मेड द फर्स्ट एंटीना ऑफ द वर्ल्ड. एक तो उन्होंने हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन है, स्पार्क गैप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को उन्होंने फाइंड कर लिया, और दूसरी चीज़ जो हुई कि उन्होंने एंटीना बना लिया, वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीना, जो कि क्रिएट और जनरेट करने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को. और साथ ही साथ आई वांट टू टेल यू दैट ये वही हर्ट्स है जिनका नाम हम एज अ यूनिट लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, दैट इज़ cycles per second. Okay, so now see, here is the picture of Hertz. He was a German physicist. The phenomena of photoelectric emission was first observed by Heinrich Hertz. He observed that the spark gap conducts electricity more easily when it is illuminated by UV radiation. His discovery was named as Hertz effect, and now it is known as photoelectric effect. But the photoelectric effect was first observed by him, but he didn't make any interest in this phenomena. So जैसे ही कोई फिजिस्ट अपनी थियोरी प्रेजेंट करता है या अपना कोई ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करता है वर्ल्ड के सामने, तो होता ये है कि लोग उसके ऊपर या कोई दूसरे साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. जैसे ही ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई स्पार्क गैप इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन द पीपल ऑफ दैट टाइम सेड दैट कि वो जो कंडक्शन हो रहा है इट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. उनको तो नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो हुई अराउंड 1897 के आसपास. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, that negatively charged particles are named as electron. Okay, so see here the phenomena of photoelectric effect. Photo
से समझ आ रहा होगा कि भाई कुछ तो रिलेशन है विथ लाइट. Electric, it must be something related to the current or electricity. So yes, this phenomena is the combination of light and the current. Light producing the current. Okay. So for the exam purpose, the question can be asked on this topic, like what is Hertz's observation regarding the emission of electron from the metal surface. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो आप जो ऊपर दिए हुए 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. आफ्टर Heinrich Hertz, one more German physicist came forward to explain the few points of this effect. The name was the physicist was William Holwich. He found that a metal plate irradiated with ultraviolet radiation lost its charges more easily when the plate is negatively charged than it is neutral or positive. So he made his own observation that अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अगर आप किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे और वो मेटल सरफेस निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ से निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो जो आपकी प्लेट है वो न्यूट्रल या पॉजिटिव रहे. आफ्टर हिम वन मोर फिजिस्ट, अगेन अ जर्मन फिजिस्ट, केम फॉरवर्ड with his observation. His name was Philip Lenard. He observed that, the electron emission occur only with radiation below critical wavelength or the above critical frequency. तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, लेकिन कब? जब रेडिएशन आपके क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होंगे, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ से वो कम होंगे, जिसे उसने कहा क्रिटिकल. और जैसे ही बात आ गई कि बिलो क्रिटिकल वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी अबव. तो नाउ सी, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. बोथ आर इन इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर. If we say wavelength means lambda is increasing and frequency means nu is decreasing, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल डिक्रीज. और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. सो देन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. यहाँ बात हो रही है क्रिटिकल वेवलेंथ की. सो से लैम्बडा नॉट या लैम्बडा डॉट इज़ योर क्रिटिकल वेवलेंथ. तो इंसिडेंट वेवलेंथ जो है उससे कम होनी चाहिए. और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन विल टेक प्लेस ओनली विथ द फ्रीक्वेंसी अबव द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ देखिए आप कि हमने अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट लिया, तो आने वाली फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल से कम होगी, वेवलेंथ क्रिटिकल से कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल से ज़्यादा होगी. अंडरस्टूड? So see the second point, the kinetic energy of emitted electron is increased as wavelength decreases. That is, the frequency increases, but independent of the intensity of radiation, which determines the rate of emission of electron. So kinetic energy क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के, दे विल एब्जॉर्ब. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो बाहर निकल रहे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. कब? जब आप जो वेवलेंथ दे रहे हैं वो बढ़ेगी.
वेवलेंथ बढ़ रही है यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही इफ़ योर लैम्बडा इज इंक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। और इसका उल्टा अगर हम ले रहे हैं then kinetic energy will decrease if the wavelength is decreased and frequency will increase. So see in this point that kinetic energy of emitted electron is depending on the wavelength and the frequency, but it is independent of the intensity of incident radiation. But जो intensity है incident radiation की वो determine करेगी rate of emission of electron. Okay, hope it is clear to you. Now see, the question can also be asked on this topic. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए, what were the investigation of Hallwich and Hallwich and Leonard regarding the photoelectric effect? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो यू विल राइट दिस 2 पॉइंट्स फॉर 1 मार्क एंड द प्रीवियस स्लाइड्स जो थी उसके पॉइंट फॉर 1 मार्क। हॉलविच के आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन के आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। नाउ वी विल क्विकली सी द फिनोमेना ऑफ photoelectric effect. You all know that the metal has free electron. They are freely moving inside the metal surface. They are in random motion. When the light of appropriate frequency is incident on the surface of metal, the energy of the radiation gets absorbed by the electron. Okay? And then these electron will just knock out the surface of the metal. सारी एनर्जी जो है रेडिएशन की ये एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल कम आउट ऑफ द सरफेस एंड वो जब बाहर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे विल क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज द phenomena of photoelectric effect. So here is the diagram and see the definition. When the light of suitable frequency is incident on the metal surface, the electrons are emitted by the metal. This phenomena is called as photoelectric effect. So dear students, for this topic, question can be asked like this: what is photoelectric effect? 1 मार्क के लिए पूछा तो you will just write the definition and draw the picture. Clear? 1 मार्क के लिए पूछिए या 2 मार्क के लिए पूछिए, आप डेफिनेशन भी लिखेंगे और इस साथ ही साथ ये टेक्स्ट बुक वाली फ़ोटो भी आप इसके साथ ड्रॉ. टुडे वी हैव लर्न द हेनरिच हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, विलियम हॉलविट्स observation, Lenard's observation, and photoelectric effect. In the next video, we will inshallah see the experimental setup and working of this photoelectric effect. Thank you for watching the video. Stay safe, study hard. Do subscribe to our channel, hit the bell icon, and give a thumbs up.